آج کا کل ہند روحانی اجتماع کا موضوع قیامت کی نشانیاں رکھا گیا ہے. قیامت میں کیا کیا ہوگا, قیامت میں کیا کیا لاکیاں ہوں گی, وہ تو سب ہم اور آپ حضرت سید امین القادری صاحب سے سنیں گے. لیکن جب کسی شاعر سے پوچھا گیا کہ تم اپنی عقیدت میں بتاؤ کیا ہوگا, تو شاعر یوں کہتا ہے, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. بڑی بیداری کے ساتھ, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. میں تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء, عوام, استاد, حفاظ, تمام اساتذہ, تلامذہ سب سے گزارش کروں گا, یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ لوگ تشریف لائے, بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. ہم نے جس طریقے سے یہاں پہ کوششیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور آگے انشاءاللہ اس سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو جاری و ساری فرمائے. پوری قوت کے ساتھ, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین, جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ ہے یقین. وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے, وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. بطور خاص ہے فیضان ان پر محبوب الہی کا, پلاتے ہیں سب کو جام مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. اور انہیں جو سنتا ہے ہو جاتا ہے ان کا شیدائی, الگ انداز ہے امین القادری کی خطابت کا. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے, سرکار کا میلاد کریں گے, ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. بانی محفل, زیب سجادہ آستان عالیہ, سلطان المشائخ سیدی محبوب الہی حضرت پیر فرید احمد چشتی نظامی مدظلہ العالی, وہ ان کے عم محترم حضرت پیر سید سراج الدین مدنی چشتی نظامی, حضرت پیر سید محبوب المرسلین صاحب مدظلہ العالی, ولی عہد خانقہ عالیہ نظام الدین اولیاء کلیمی اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی سلیم احمد صاحب مصباحی, وہ حضرت علامہ ظفر الدین صاحب برکاتی, حضرت علامہ مقبول احمد سالک مصباحی, نبی رئیس القلم حضرت علامہ محمود غازی صاحب ازہری مدظلہ العالی, وہ نقیب محفل حضرت علامہ حافظ جنید نظامی صاحب, وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل, السلام علیکم ورحمۃ. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم, نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو, محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. آج کی یہ محفل سلطان المشائخ حضور سیدی سندی و مرشدی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. ہر سال یہ محفل منعقد ہوتی ہے جس میں آپ اور ہم واعظ و نصیحت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آج ہم
ایک عظیم شخصیت کو اپنے درمیان سے گم پا رہے ہیں۔ وہ ہستی ہے یادگار اسلاف بقیت السلف حضرت پیر سید احمد بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جو واقعی اپنے اسلاف کی یادگار تھے۔ ایک خاموش شخصیت، ایک نازک سا وجود، لیکن پیشانی پر یقیناً اور آنکھوں میں معرفت الہی کے چراغ جلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسے شخصیت کو آج ہم اپنے درمیان سے گم پا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے مرکز انور پر صبح قیامت تک نور و نکھت کی برسات فرمائے کہ وہ گئے لیکن اپنے لائق و فائق فرزند حضرت پیر سید احمد بخاری، پیر سید فرید احمد بخاری ان کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صاحب سجادہ پر ان کے اسلاف کا فیض انشاءاللہ جو جاری ہے مزید جاری رہے گا، اور وہ اپنے اسلاف کے سچے جانشین کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان اسی طرح جیسے ان کے بزرگوں نے کام کیا ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ غیبی مدد فرمائے۔ آپ جیسا کہ نقیب محفل سے سن چکے ہیں کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ مجھے آج قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ ویسے بہت خوبصورت گفتگو حضرت پیر سید سراج الدین مدنی بخاری متظل لہ العالی نے فرمائی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ناصحانہ انداز میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یقیناً ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اگر میں بہت بڑا خطیب، بہت بڑا محقق، بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا جو ہے وہ عالم فاضل بھی ہوتا تو اس دربار کے اندر مجھے لب کشائی کی جسارت کیا ہو سکتی تھی؟ جہاں بڑے بڑے لوگ، محبوب الہی کی کا دربار وہ دربار ہے جہاں حضرت بندہ نواز گیسو دراز جیسی ہستیاں، جہاں نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی ہستیاں، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں غلاموں کی طرح آتے ہیں، میں وہاں بھلا اتنا علمی بے مائگی کے احساس کے ساتھ کس طرح انداز تخاطب اور خطابت کی جولانیوں کے ساتھ آ سکتا تھا؟ اگر میں بہت کچھ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ زیب نہ تھا چے جائے کہ میں کچھ بھی نہیں، بس اس امید پر کچھ ٹوٹے پھوٹے بے تکے الفاظ، بے جوڑ الفاظ اس امید پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرشد، اپنے مخدوم سیدی محبوب الہی کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کاش کہ وہ نظر کرم فرما دیں اور میرے سبق کو قبول فرما لے تو میرے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جو ہے، قیامت کیا ہے؟ قیامت دراصل آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آغاز ہے اور پھر جب وہ چیز مکمل شباب کو پہنچتی ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شباب پر آتا ہے اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ روزانہ کلیاں مسکراتی ہے، پھر اس کے بعد وہ شباب پر آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مرجھا جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روز جو ہے وہ ہر پہلی تاریخ کو چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر 14ویں کا چاند بدر کامل ہونے کے بعد گھٹتے گھٹتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر ایک وقت آنے والا ہے، کیا کہ ہر چیز کا خاتمہ ہونا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہ قیامت کیا ہے؟ دراصل عقیدہ قیامت جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قیامت یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، قیامت جب آئے گی آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت جب آئے گی زمین کے زلزلے جاری ہوں گے، زمین پر زلزلے آئیں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث
अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। क़यामत के ज़लज़ले का हाल ये होगा कि जब जमीन पर ज़लज़ले आएंगे तो जमीन अपने नीचे के मादे ऊपर की तरफ उंडेल देगी, जमीन इंसानों के अमाल की खबर देगी। अल्लाहु अकबर। एक मुकाम पर आया है, अल्लाहु अकबर, जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे। क़यामत आएगी तो अल्लाहु अकबर दरियाओं का खात्मा हो जाएगा। क़यामत आएगी तो हमल वाली ऊँटनियों के हमल ज़ाय हो जाएंगे। क़यामत आएगी तो ऐसी आवाज और चिंगाड़ होगी कि लोगों के कलेजे फट पड़ेंगे। क़यामत अचानक आएगी। और आपने जो है वो सुना हजरत से कि क़यामत जो है माह मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन आशूरा के रोज आएगी। लेकिन क़यामत तो आएगी, मगर क़यामत के आने से पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुछ निशानियां बयान फरमाई है कि जब इन निशानियों को देखो तो अंदाजा कर लो कि क़यामत करीब है। क़यामत जब आएगी आएगी, पहली बात तो याद रखें, मुसलमानों के होते हुए क़यामत नहीं आएगी, मोमिनों के होते हुए क़यामत नहीं आएगी। यानी क़यामत मुसलमानों पर नहीं आएगी, क़यामत जिन पर आएगी उन पर आएगी, लेकिन मुसलमानों पर क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। मतलब यह है जब तक जमीन पर मुसलमान मौजूद होंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। मगर क़यामत की कुछ निशानियां हैं। अब उस निशानियों को आप तीन जो है वो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो ये उनकी जो बड़ी निशानियां हैं, यानी कि जो बिल्कुल करीब क़यामत जाहिर होगी। एक वो निशानियां हैं जिसको आप जो है यानी कि दरमियाने दर्जे की निशानियां कह सकते हैं, और एक वो है जो छोटी निशानियां हैं। एक बात याद रखें, जब भी क़यामत की निशानी बयान होती है तो क़यामत की हर निशानी को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हालांकि ये बात याद रखें, क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं है। कुछ निशानियां क़यामत की अच्छी भी है। बल्कि आपको ये बताऊं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद खुद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए मेरे आका को, अपने नबी को नबी आखिरुज़ ज़मान कहते हैं, यानी आखिरी जमाने का नबी। यानी अब हमारे नबी के बाद अब कोई नबी और नहीं है, आका है, उसके बाद क़यामत है। यानी हुजूर की आमद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई। लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करूं, आप क़यामत की निशानियां सुनते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। क़यामत की निशानी बयान हो रही है, लेकिन किसी रिवायत में हमें यह नहीं मिलता कि जिब्रील ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया हो, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है, वो क़यामत की निशानियां बयान करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म नुज़ूले जिब्रील का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहता है कभी जिब्रील के जरिए से इत्तला देता है, और जब चाहता है बगैर जिब्रील के इत्तला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस इलाही साहिबे सज्जादा। बल्कि बास बातें तो वो हैं जिससे जिब्रील को भी खबर नहीं होती और महबूब को आगाह किया जाता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, गुंजे जो चटके थे माँ दना के बाग में, गुंजे जो चटके थे माँ दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कभी कभी तो जिब्रील को भी पता नहीं चलता कि बातें क्या हो रही है। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। याद रखें, लेकिन इतना जरूर है हमारा अकीदा कि किसी का भी इल्म हो, अल्लाह के बताए बगैर एक जर्रे का इल्म किसी को नहीं हो सकता। जर्रा तो बड़ी चीज है, जर्रे के करोड़वें जर्रे का हिस्सा भी खुदा के बताए हुए किसी को नहीं हो सकता। जितना जिसके पास इल्म है वो सब अल्लाह की अता से है। लेकिन आइए अब क़यामत की निशानियों पर गुफ्तगू की जाए। मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है इंशाअल्लाह, चूंकि हालांकि आज वक्त भी ज्यादा हुआ, हालांकि इतना वक्त नहीं हुआ करता था गुफ्तगू, खुसूसी गुफ्तगू के लिए, एंड की और आखिरी गुफ्तगू के लिए। लेकिन बहरहाल तो मैं अपने वक्त पे गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब जरा सुनते जाएं, क़यामत की निशानियां
निशानियां बहुत है, उनमें से चंद आपने समाअत फरमाई, लेकिन एक बात मैं आपके सामने पहले कुछ निशानियां पढ़ता हूं। क़यामत की निशानियों में से निशानियां क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, औरतें कपड़े पहनकर भी बरहना रहेगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी औरतें तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा में 1450 साल पहले बैठ करके अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की खबर दे रहे हैं, क़यामत तक के हालात की खबर दे रहे हैं। क्या खबर दे रहे हैं? औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कपड़े पहन करके नंगा कैसे रह सकता है? तो फरमाया, इतने पतले और इतने बारीक लिबास पहनेगी कि वो कपड़े पहन कर भी उनका जिस्म नजर आएगा। आज आप देखें, अपने माथे की आंखों से इस मंजर को देख सकते हैं। आज के बारीक और पतले लिबास, आज के पतले पतले कपड़े फैशन बनते जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जरा तवज्जो करें। लोगों के हाथ तो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन दिलों के अंदर कीने मौजूद होंगे, लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ मौजूद होंगे, लोगों के दिलों में हसद मौजूद होंगे। सीने से सीने मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, लेकिन दिलों के अंदर हसद की आग जल रही है, बुग़्ज़ की आग जल रही है, कीने की आग जल रही है। अल्लाह अकबर, फलों से मिठास खत्म होगी, फूलों से खुशबू खत्म होगी, लोगों से मोहब्बत खत्म होगी। देख लीजिए, आज भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, भाई भाई में उल्फत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरमाया, अब वो दौर के लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, अपने बड़ों की बुराई बयान करेंगे, यानी कि लोग अपनी अगलों पे लानतान करेंगे। आजकल के छोकरे कहते हैं, अरे हमारे बाप दादाओं को क्या समझता था, वो तो जाहिल थे। हैरत की बात है, तुम्हारे बाप दादा दौरे रिसालत के करीब थे या तुम दौरे रिसालत के करीब हो? फैजाने दौरे रिसालत, उन पर ज्यादा छमाछम बरसा है या तुम पर ज्यादा छमाछम बरस रहा है? अगर किसी को यह कहा जाए, चलो उर्स महल में महबूब इलाही की उर्स की तकरीब में, तो ये उर्स क्या होता है? अल्लाह अकबर, ये उर्स तो बुजुर्गों का तरीका है, वो जाहिल लोग थे, उन्हें क्या समझता था? आज सब कुछ हमें समझ रहा है। 14 सदियों के बाद सारी समझ आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को आ गई है। अल्लाह अकबर, सुन लो, आजकल के हालात को अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले बयान किया था, लेकिन मैं अपने तौर पर अलग अलग चीदा निशानियां बयान करने की बजाय हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो हज किया, हालांकि जाहिरी तौर पर जो अहले इल्म है उसको हज्जतुल वदा कहते हैं, लेकिन सूफिया उसको हज्जतुल वदा नहीं कहते। उसकी वजह यह है, बहुत से मामले में सूफिया के नजरियात अहले जाहिर से बहुत अलग होते हैं। उसको हज्जतुल वदा जो कहते हैं वो भी सही है। तवज्जो, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा मेरे भाई, अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा सुन लें। अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ये तो मुनाजरा होगा, तकरीर थोड़ी होगी। मैं तो सूफिया का गुलाम और मुनासिर आदमी नहीं हूँ, मैं कोई मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो सबक सुनाने आया हूँ। आप मेरी बात सुन लें एक मरतबा। क्या क्या चाहते हैं बताएं मुझे, आप क्या चाहते हैं? ये लोग बैठ जाएं जिनको बैठने के लिए। हालांकि अब उर्स महल जो है तंग दामनी की शिकायत कर रहा है, लेकिन ये बैठे भी तो बेचारे कहाँ बैठे। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो सूफिया के नजदीक बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अहले जाहिर हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे कुछ उनके मामलात जुदा हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जाहिर के खिलाफ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन सूफिया का एक अपना अकीदत का मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, सीरत निगार इसको हज्जतुल वदा कहते हैं, यानी आखिरी हज। सही है, कोई गलत नहीं, ठीक। लेकिन सूफिया कहते हैं हम हज्जतुल वदा नहीं कहेंगे, वो भी सब नहीं, बाज,
वजह, वो कहते हैं हमारे नबी अब भी जिंदा हैं और वो अब भी हज करते हैं। तो जब अब भी वो हज कर रहे हैं तो फिर हज्जतुल वदा कैसा? जब अब भी हज हो रहा है तो आखिरी हज कैसा? ये बात है। ठीक, ये सूफिया का अपना, बल्कि आप कहेंगे वो कैसे हज कर रहे हैं? तो मैंने कहा जो महबूब इलाही की सीरत पढ़ चुका और महबूब इलाही को मानता है, चिटिंग नहीं करता, तो उसके लिए रसूलुल्लाह का हज मानना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि यही गयासपुर है, यही गयासपुर है ना, यही गयासपुर है। ये मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे हासिदीन थे महबूब इलाही के, जो कहते थे ये तो रात भर सिमा सुनते रहते हैं और फजर में सोते पड़े रहते हैं। फजर की नमाज में इनको कभी देखा नहीं जाता मस्जिद में, ये मस्जिद में कभी नजर नहीं आते, रात भर सिमा सुनते हैं और फजर में सोते रहते हैं। हम इन्हें पीर कैसे माने? लेकिन वही हासिदीन को अल्लाह ने मौका दिया कि जब वो हज की सआदत हासिल करने के लिए वहां पर पहुंचे और फिर मदीने मुनव्वरा आए, तो अपने घर जाने से पहले महबूब इलाही की खानकाह में आके कदम पकड़ के कहते माफ कर दीजिए। तो महबूब इलाही ने कहा माफी कैसी? तो कहा हम समझते थे आप फजर नहीं पढ़ते, लेकिन वहां जाकर पता चला आप तो मस्जिद नबवी में फजर अदा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महबूब इलाही की खानकाह है, यहाँ मेरे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि आकाओं की बारगाह में आकायत नहीं होती, यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ सब गुलाम है। इसलिए बेशक बेशक मेरे नाम का कोई नारा नहीं लगेगा, यहाँ नारा लगेगा या तो महबूब इलाही का या तो महबूब इलाही के आकाओं का। मुझ गुलाम का यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं, आकाओं का जिक्र हो गया, गुलामों की मेराज हो गई बस। इसलिए तो आपसे पूछना चाहता हूं, वलियों की कायनात के महबूब की जब ये शान है, वलियों के कायनात की महबूब की जब ये शान है, तो नबियों के कायनात की महबूब की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम हज्जतुल वदा मानते भी हैं मुहक्किकीन के कहने पर और सूफिया के कहने पर ये भी मानते हैं, इसलिए कि हम तो दोनों हाथ में लड्डू रखते हैं। क्या बात है, वाह। हमारा मिजाज तो ये है कि हम तो मुहक्किकीन को भी मान रहे हैं, सूफिया को भी मान रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह अकबर तहकीक का गलबा होता है तो बात तहकीक की होती है, इश्क का गलबा होता है तो फिर सूफिया की बात होती है। क्या लेकिन हम दोनों के मुनकिर नहीं है। तो बहरहाल तो आका अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर एक तवील हदीस बयान फरमाई, और किस तरह बयान की? सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल हरम में दाखिल हुए तो काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा पकड़ा और काबे का दरवाजा पकड़ के कहा, लोगों, काबे का दरवाजा पकड़ के, काबे की चौखट पकड़ के कहते हैं, लोगों मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, सुन लो। लोगों मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, सुन लो। लोगों मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, सुन लो। तो सहाबा ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो मैं तुम्हें क़यामत की निशानी बताना चाहता हूं, क़यामत की कुछ निशानियां सुन लो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत गिरिया फरमाया, बहुत आंसू बहाए, और बहुत आंसू बहाने के बाद फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हो गए, और सहाबा की तरफ मुतवज्जे होने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानी बयान करना शुरू की। सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानी बयान फरमाई, पहली निशानी क़यामत की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों जब क़यामत तुम्हारे करीब होगी तो लोग नमाजों को ज़ाय करेंगे, लोग नमाजों को तर्क करेंगे। अब यहाँ पर हर चीज पर मैं तफसीरा न कर सकूंगा, क्योंकि अब तकरीबन 30-35 मिनट में मुझे सारी निशानियां जो हज्जतुल वदा के मौके पे बयान हुई हैं वो सब पढ़ देना है। लेकिन इतना जरूर कहना
चाहता हूँ, ऐ औलिया के मानने वालों, ऐ बुजुर्गान दीन के मानने वालों, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी क्या है? नमाजें ज़ाय की जाएगी, नमाजों को तर्क किया जाएगा, नमाजों को छोड़ा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं? अफसोस, मुसलमानों के मोहल्ले वीरान है, मुसलमानों की होटलों में तो कतार लगी हुई खाने वालों की, होटल चाय की होटलों पर तो कुर्सियों पे बैठने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, सिनेमा घर हाउसफुल चल रहे हैं, गुनाहों की अड्डे आबाद हैं। अगर वीरान है तो अल्लाह का घर खाली है, अगर सुना सुना है तो अल्लाह का घर सुना सुना है। बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान दूसरी अक्सरियत में है। अगर मुस्लिम नौजवान, अल्लाह अकबर, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नौजवानों की तादाद 60% है, अल्लाह अकबर, अगर ये मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दे, एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए इनकलाब का आगाज होगा। इकबाल कहते हैं, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, वो सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ान से पैदा। जब बंदे मोमिन की अज़ान में इतनी ताकत है कि वो हर रात की सुबह कर सकता है, तो बंदे मोमिन के सजदे में कितनी ताकत होगी। आज मुसलमान कहते हैं हम रुस्वा हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हम बर्बाद किए जा रहे हैं, हमारे घरों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों से धुएं निकल रहे हैं, हमारी बस्तियों को जलाया जा रहा है, हमारी बस्तियों को आग लगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, खून से होली खेली जा रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब तक खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ रहे, किसी मां ने ऐसा लाल पैदा न किया था कि तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर सके। जब से तुमने खुदा के घर को वीरान किया, अल्लाह ने तुम्हें तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। यही दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली, यही दिल्ली है, दिल्ली जहां तकरीबन 7 सदियों से ज्यादा इस दिल्ली के तख्त को तुमने अपने पैरों से रौंदा है, रौंदा। और आज यही दिल्ली है जिस दिल्ली में तुम कासे गदाई लेकर लोगों के दरवाजे पर दर दर के भिखारी बने हो। कलमा वही, कुरान वही, रसूल वही, खुदा वही, महबूब इलाही की चौखट वही, 22 खाजगान के आस्ताने वही। क्या बात है, कल तक तुम इसी दिल्ली के ताजदार थे और आज दिल्ली का रहवासी बनना भी तुम्हें डाउटफुल कर गया। क्या निशान? दिल्ली की शहरियत भी तुम्हें डाउटफुल कर गई। वजह, उस वक्त तक तुम बादशाह थे जब शमसुद्दीन अल्तमश की शक्ल में तुम थे, तो बादशाह होकर भी तुम्हारी तहज्जुद तर्क नहीं होती थी। बादशाह होकर भी तुम किसी नामहरम औरत पर नजर नहीं उठाते थे। और आज चंद रुपये क्या कमा लेते हैं, पहली बीवी से दिल नहीं भरता, उसमें ऐब और नक्स निकालकर किसी और के साथ इश्क लड़ाने चले जाते और हराम कारियां करने जाते हो। फिर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी, फिर रुसवाई नहीं होगी तो क्या होगी। याद रखना, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से आती है। और सुनो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मुसीबतों के हालात को बदल नहीं सकती। कौन बदलेगा हालात? तो कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। तो मेरे आका ने सबसे पहली निशानी बयान फरमाई, क़यामत की निशानियों में पहली निशानी कि नमाजों को ज़ाय किया जाएगा, नमाजों को तर्क किया जाएगा, और उसके बाद इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का बंदा बन जाएगा, अपनी
نفسانی خواہشات کو پورا کرے گا۔ یہ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو نفس نے کہا بس وہ کرے گا۔ مثال کے طور پر آج لوگ کہتے ہیں مولانا آج اللہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ پہلی بات تو یہ کہنا ہی مناسب نہیں کہ دعا نہیں سنتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اس کی کتنی سنتے ہیں؟ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اس نے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ تم میری نہیں سنتے، خدا ہو کر کے اس نے کبھی شکایت نہیں۔ ہم اس کی کتنی سنتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا آپ کو تو ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھا، ادھر قبول ہوئی، راز کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی راز ہے، میں اس کی سنتا ہوں وہ میری سنتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میں اس کی سنتا ہوں وہ میری سنتا ہے۔ نادان، جس دن تو اس کی سننے لگے گا پھر دیکھ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل سائل ہی ہی نہیں۔ نہیں، واہ 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 واہ۔ ارے وہ ہر رات، ہمارے مسلک میں شب قدر اور شب برات کی قید نہیں ہے، صرف سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ ہر رات کے آخری حصے میں، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ بندوں سے کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی ولی کی زندگی اٹھا کے پڑھ لو، آپ کو کوئی ولی رات کے آخری حصے میں کبھی سوتا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد تارک السلطنت غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے آخری حصے میں جاگ کر جو نعمتیں پائی ہے کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں پائی ہے۔ جب تک مسلمان رات کے، بڑی معذرت کے ساتھ خانقاہی لوگ بیٹھے، علماء ذمہ دار ہیں، مشائخ ہیں، ایک بات کہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کیا کہتے تھے؟ پیر صاحب دعا کرو، مولانا دعا کرو، سید صاحب دعا کرو، پھر کوئی تعویذ دے دو۔ تعویذ میں ایسے غرق ہوئے، ایسے غرق ہوئے، رسومات میں ایسے ڈوبے کہ حقیقتوں سے دور تر ہوتے جا رہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے سب تعویذ سے ملتا ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں تعویذ کو بھی جو ملتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تعویذ کو بھی اگر کچھ ملتا ہے تو اللہ کی مرضی اور رضا سے ملتا ہے۔ مسلمانوں تم اپنی حاجتوں کو میرے پاس کیوں لاتے ہو؟ تم اپنی حاجتوں کو اپنے جیسے انسانوں کے پاس کیوں لاتے ہو؟ جب تمہارے اور میرے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا کہ تمہارا اللہ ہر رات میں آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کر کے خود کہتا ہے مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو پھر اس وقت اٹھ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ سن لو اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ فرما رہا ہے کہ اے مغفرت مانگنے والے آ توبہ کر تاکہ میں تجھے معاف کر دوں، روزی مانگنے والے تاکہ میں تجھے روزی عطا کروں، اے مسائل میں گرفتار آ مجھ سے اپنے مسائل کا حل مانگ لے تاکہ میں تیری جھولی بھر دوں۔ افسوس اللہ جس وقت پکار کر اپنی شان کے مطابق یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت مسلمان گندی فلمیں دیکھ کر رات کے 3 ساڑھے 3 بجے تھک کر کے سو چکا رہتا ہے، کوئی اللہ اکبر گلیوں کا چکر لگا کر کے تھک ہار کے سو چکا رہتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے رات کے 3 4 بجے تک جاگ کر گناہ کر کے جاگ کر یہ قوم رات کے آخری حصے میں سو رہی ہے، فجر میں سوتی پڑی ہے۔ جب دنیا کے اندر سورج چہرے پر آ کر تمازت سے بے قرار کرتا ہے، جب ہماری آنکھیں کھلتی ہے، جب دنیا آدھے کام کر چکی ہوتی ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ آؤ اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھنا سیکھو، اپنے مسائل خدا کے دربار میں رکھنا سیکھو، لیکن اتنا یاد رکھنا خدا کے دربار میں جب مسائل رکھنا تو اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ کر کے مت رکھنا ورنہ مردود قرار دیے جاؤ گے۔ اپنے باپ آدم کی سنت کے مطابق وسیلہ محمدیہ پیش کر کے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی محبوب کرے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی محبوب فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس۔
लोग नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाएंगे, लोग नफ्स का शिकार हो जाएंगे, यानी लोग जो नफ्स कहेगा उसी में डूब जाएंगे। नफ्स कह रहा है फजर में सोता पड़ा रहे, इंसान सो रहा है। नफ्स कह रहा है हराम खा, इंसान खा रहा है। आईफोन लेने की औकात नहीं, लेकिन दोस्तों ने आईफोन ले लिया है तो अब चोरी करके लेना चाहता है, इसलिए कि दोस्तों में सर नीचा न रहे। इसलिए नफसानी ख्वाहिशात के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, दोस्तों में झूठी शोहरत पाने वालों, अपने खुदा को नाराज न करो। आईफोन में इज्जत नहीं है, अच्छे कपड़ों में इज्जत नहीं है, अच्छे मकानात में इज्जत नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानों में इज्जत नहीं है। इज्जत किस चीज में है? तो कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इज्जत फोन में होती, इज्जत लिबास में होती, इज्जत महल में होती, आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, दिल्ली आने के बाद महबूब इलाही की मस्जिद तो बताई जा रही है, महबूब इलाही की खानका तो बताई जा रही है, महबूब इलाही का घर क्यों नहीं बताया जा रहा है? मुझे बताओ तो सही, महबूब इलाही ने कहां महल बनाया था? कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का महल कहां है? 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज का महल कहां है? आप मुझे बताएं इनके महल्लात कहां है? आप कहेंगे महल नहीं बनाया इसलिए कि ये जानते थे महलों से इज्जत नहीं मिलती, खुदा की रजा से इज्जत मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हराम की तरफ मुझे नारों से कुछ मोहलत दे दे तो थोड़ी बात में कुछ वक्त बच जाए तो मैं आपसे बात कर सकूं, इसलिए कि ये कोई कंपटीशन का मुकाबला तो नहीं, सबक सुनाने के लिए आए हैं तो फिर सबक ही सुनाने दीजिए। थोड़ी बात सुन ले तो नफ्स इतना खराब है, नफ्स इतना खतरनाक है जो इंसान को तबाह करता है। नफ्स क्या है आपको बताऊं, सबको शैतान ने बिगाड़ा। शैतान से पहले कौन सा शैतान था जिसने शैतान को बिगाड़ा? सबको शैतान ने बिगाड़ा, शैतान को उसके नफ्स ने बिगाड़ा। रमजानुल मुबारक में शैतान कैद हो जाता है, नफ्स कैद नहीं होता। शैतान कभी साथ छोड़ देता है, नफ्स कभी साथ नहीं छोड़ता। ये नफ्स बड़ा हलाक करने वाला है। नफ्स, इसीलिए खानकाहों की तालीम में पहली तालीम यह है नफ्स को कुछ, अपनी आना को फना कर। हम लोग खिलाफतों की बात करते हैं तो खिलाफत देने से पहले आजकल हम लोग कहते हैं चलें रोजे रखें और ये करें और ये करें, अच्छी चीज है। मैंने तो ये भी पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से भी सुना, महबूब इलाही तो किसी को खिलाफत देते तो कहते जा फुला मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के लोगों के जूते संभाल, जूते सीधी कर, जो इस्तिंजा करते हैं उनके ढेले जाकर के धुल दे, वजह ताकि अना फना हो जाए, ताकि नफ्स कुचल दिया जाए। जब तक बेनफ्स लोग रहे उम्मत में फिरके नहीं रहे, जब तक बेनफ्स लोग दुनिया में रहे उम्मत में फिरके नहीं रहे। जब नफ्स वाले आ गए तो दुनिया फिरकों में तकसीम हो गई। इसलिए कि दिल वहदत चाहता है और नफ्स तफरीक चाहता है। इसलिए कि दिल पर खुदा की तजल्ली है और नफ्स पर शैतान का गलबा है। तो शैतान तो इंतशार चाहता है और रहमान इत्तेहाद चाहता है। जब तक अहले दिल थे उस वक्त तक फिरके नहीं थे। यही खानकाह महबूब इलाही की, जिनके कदमों में मलिक शोरा तूतिए हिंद हजरत अमीर खुसरो सो रहे हैं, उनके एक मकतूब में वो लिखते हैं हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा है जिस मुल्क की दरिया की मछली भी सुन्नी है। क्या बात। हजरत अमीर खुसरो ने लिखा, यानी कि जब तक अहले हवा अहले नफ्स नहीं थे, यहां की दरिया की मछलियों पर भी अहले इश्क का रंग था। इसलिए कि रहते अहले दिल थे। तो जब तक अहले दिल रहे उम्मत फिरकों से बटी रही। जब से अहले नफ्स ने अहले दिल की जगह पे कब्जा किया, औकाबों के नशेमन पे है जागों का बसेरा। जब से अहले दिल की मसनदों पर अहले नफ्स आ गए, फिर उम्मत इंतशार का शिकार हो गई। आप कहेंगे नफ्स और दिल में फर्क क्या है? तो हालांकि क़यामत की निशानी उन्वान है, लेकिन आप कहेंगे कुछ ये भी तो समझा दे। हालांकि मैं खुद समझाने के काबिल नहीं, लेकिन तवज्जो करें, नफ्स और दिल में फर्क क्या है थोड़ा समझ ले, अभी समझ में आएगी। हजरत मालिक इब्न दीनार एक सफर में है, एक छोटा सा बच्चा, हालांकि बच्चा भी कहना मुझे गवारा नहीं है,
ایک چھوٹا شہزادہ, چھوٹا بھی کہنا گوارا نہیں ہے کیونکہ آگے آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی گوارا نہیں, یوں کہہ لوں ایک کم عمر شہزادہ لکڑیاں چنتا ہے اور روتا جاتا ہے. مالک الدینار اس خوبصورت سے چھوٹے سے کم عمر شہزادے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے خیال آتا ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے, چلو سلام کر لیتے ہیں. خیال آیا ارے چھوڑ, اتنا سا بچہ ہے, اس کو کیا سلام کریں, توجہ, اس کو کیا سلام کریں. نکل گئے آگے نکلے, فوراً خیال آیا مالک جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ حضور بچوں کو سلام کرے اور تو بچوں کو نظر انداز کرے. واپس پلٹ, سلام کر. واپس پلٹے, السلام علیکم. بچے نے سر اٹھا کے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. خیر سے دنیا کے اندر وہ منحوس دن نہیں آئے تھے جن دنوں نبی کے علم غیب کا بھی انکار ہو رہا ہے. وہ دن تو ایسے دن تھے کہ اس وقت صرف ماننا ہی ماننا تھا, بلکہ لوگ کہتے تھے نبی ایسے ہیں, نبی ایسے ہیں, تو انسان کہتا تھا اس سے بڑی بول, اس لیے کہ میرا نبی اس سے بڑھ کر, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, اس سے بڑی بات کرو. اس لیے کہ خدا, میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں, صوفیہ کی دعا لیتا ہوں, سچ کہوں تو تائید کریں گے ورنہ میں تو رجوع کرنے کے معاملے میں بڑا مشہور ہوں ہندوستان میں. میرا اپنا مزاج ہے, ہم کبھی اڑتے نہیں ہیں کیونکہ اڑنا شیطان کا طریقہ ہے, بے شک, اور غلطیوں پر جھک جانا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے, جو جن کی سنتوں پہ ہمیں رہنا کوئی بات ہی نہیں. جب کہا جاتا تھا حضور ایسے ہے تو لوگ کہتے تھے اس سے بڑھ کے بول, اس لیے کہ لغتیں جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے, الفاظ جہاں ختم ہے اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو بات کہنے جا رہا تھا, خدا محبوب کو جو جو دے سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے دے دیا. واہ 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 واہ, جو دے سکتا, جو چیزیں تحت قدرت تھی خدا نے سب عطا کر دیا, بے شک بے شک, سب عطا کر دیا, کچھ باقی نہیں رکھا. بلکہ یہاں تک اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار بے حجاب کرایا اور حضور نے فرمایا انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنا آپ دکھا دیا تو اب چھپایا کیا, جب اپنا آپ دکھایا چھپایا کیا. بہرحال باتیں ہوتی رہے گی, لیکن عرس محل کی یہ تقریب ہے, میں عرض کر رہا تھا. اس شہزادے, ننھے شہزادے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. شہزادے میری تمہاری یہ پہلی ملاقات ہے, تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا آپ اور ہم عالم ارواح میں آس پاس کھڑے تھے جناب. آپ اور ہم عالم ارواح میں آس پاس کھڑے تھے جناب, آپ یہاں آ کے ہمیں بھول گئے, لیکن ہم نے تو آپ کو یاد رکھا, ہم نے تو آپ کو یاد رکھا. ارے شہزادے آپ تو بڑی عارفانہ گفتگو کرتے ہیں, یہ شاید آپ کے اتنے اچھے شہزادے پر اس کے ماں باپ نے ظلم کیا. کہا نہیں, میرے ماں باپ کو گالی نہ دے, میرے ماں باپ نے ظلم نہیں کیا, میں نے خود ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں جنگل میں لکڑی لینے کے لیے. کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں لکڑی جنگل سے لے جاتا ہوں تو بڑی بڑی لکڑیاں میری امی چولہے میں ڈالتی ہے, اور جب چولہے کی آگ نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور آگ جلاتی ہے. تو میں سوچ کر روتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اللہ جب جہنم کو بھڑکائے گا انسانوں سے تو بڑے بڑے انسانوں کو ڈالے گا, تو جہنم کی آگ ویسے نہیں بھڑکے گی,
انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات کیا جیسا کہ بھڑکانے کی بات ہے، تو پھر جب وہ بڑے بڑے جہنمیوں سے وہ آگ پر وہ اثر نہیں ہوگا یا جہنمیوں پر آگ کا وہ معاملہ، تو چھوٹے چھوٹے ہم بچوں کو بھی تو کہیں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں آپ تو بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں۔ میری زندگی کے چند سوالات ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا لیکن وہ جواب نہ دے سکے، تو کیا آپ کچھ سوال کے جواب دے سکتے ہیں شہزادے؟ کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بولیے۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ تو اس شہزادے نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے سلام کرنے کا سوچا تھا کہ چلو سلام کرتے ہیں، پھر خیال آیا بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں؟ بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں؟ پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر دل میں خیال آیا ارے جب آقا مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو تو کون ہوتا ہے؟ چل واپس پلٹ سلام کر۔ تو جس نے مجھے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا، جس نے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا، اس نے انا پیدا کی، اور جس نے واپس پلٹایا وہ آپ کا دل تھا۔ یہی فرق ہے۔ وہ پتا چلا نفس گھمنڈ پیدا کرتا اور دل عاجزی پیدا کرتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی سن لیں، نمازیں ترک ہوگی، نفسانی خواہشات پر عمل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے تم ایسا دیکھو گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا کیا ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نماز چھوٹنے کی بات سن رہے تھے۔ وہ لوگ کا مسلک تو یہ تھا، صحابہ کا مسلک یہ تھا، وہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے سنا نماز چھوڑی جائے گی، نماز ترک ہوگی، نماز چھوٹے گی، تو انہوں نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ سلمان فارسی نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور اس وقت کے، اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اس وقت کے جو سچے مومن ہوں گے نا، یہ حالات دیکھ کر ان کا دل ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، اور وہ لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائیں گے اپنی قوم کی، یعنی بس وہ حالات کو دیکھ کے کڑتے رہیں گے، کچھ کہہ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہوگی۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بڑے چہیتے صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، یہاں تک آقا نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم نے فرمایا اے سلمان میرے اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں سلمان میرے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تو ایسے حالات ہوں گے کہ بارش بہت کثرت سے ہوں گی، یعنی نقصان پہنچانے والی بارشیں ہوں گی، بہت کثرت سے بارش ہوگی۔ دیکھو اس سال آپ نے وہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، بارش کثرت سے ہوں گی۔ اور پھر فرمایا جو اولاد ہوں گی، اولاد غصیلی پیدا ہوگی، اولاد جلالی پیدا ہوگی، اولاد غصہ دکھانے والی پیدا ہوگی، یعنی وہ ماں باپ پر جو ہے وہ غصہ دکھائیں گے، جلال دکھائیں گے۔ آج دیکھو اللہ اکبر، کوئی باپ کو بڈھا کہہ رہا ہے، کوئی ماں کو بڑھیا کہہ رہا ہے، اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کوئی ڈوکرا ڈوکری کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو، یہ حالات ہیں، یعنی اولاد ماں باپ پہ غصہ کریں گے، غصیلی اولاد ہوگی۔ لیکن سن لیں، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ایک بار اگر اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی ہے تو قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے گی، اس کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، آج کل باہر نکل کر تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، بڑے دھیرے دھیرے الفاظ میں بنا اور سوار کر باتیں کرتے ہو، اور گھر میں جاتے ہو تو چیخم چلی کرتے ہو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بارش زیادہ ہوگی، اولاد جو ہے وہ غیظ و غضب والی پیدا ہوگی، اور پھر فرمایا کمینے لوگوں کی کثرت ہوگی۔ حدیث میں اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو میں نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے تو میں نے اس کو پڑھنے۔ کمینوں لوگوں کی کثرت ہوگی اور نیک لوگوں کی کمی ہوگی، نیک لوگ کم ہوں گے۔ اب یہاں تو حال یہ ہے، بڑی پھر اس پہ کہتا ہوں، خانقاہ میں کھڑا ہوں، معذرت تو کرنی ہے مجھے،
آج کل لوگ سوچتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی میں نیک ہوں, میں نے ٹوپی پہن لی میں نیک ہوں, 4-5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں نیک ہوں. نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیک اور کمینے کو ایک جملے میں بیان فرمایا. ہر آدمی آئینہ دیکھے, حدیث کا آئینہ دیکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیوی کی عزت کرتا ہے وہ نیک اور شریف النفس ہے, اور جو بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ دنیا میں کمینہ انسان. اللہ کے رسول نے وہ کمینہ ہے, کمینہ. اب وہ لوگ جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو طلاق دیتے ہوں, وہ لوگ جو جہیز نہ لانے کی بنیاد پہ بیوی کو زہر کھلاتے ہو, جلانے کی بات کرتے ہو, تانے دیتے ہو, ان سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ پھر کہتا ہوں اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں نہ کہتا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. کتنی بڑی بات ہے, غور کرو, بیویوں کی عزت کرنا سیکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو اپنی زبان سے اذیت دے گا, تکلیف پہنچائے گا, قیامت کے دن اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. آج کل بیوی کا مطلب صرف اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن چکا ہے. بیوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی روح میں, ایک دوسرے کے دل میں, ایک دوسرے کے جذبات میں اتر جائے. یہ حالات نہیں رہ گئے, ورنہ یہی مسلمان تھے. آج اگر مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ تھام کر جانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہم مسلمانوں کی ہے. کہ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ لڑکے تمہیں پیار نہ دے سکیں گے, پیار تو کوئی اور دے گا. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم نے جتنا پیار دیا, ہمارے اسلاف نے جتنا پیار دیا, اتنا کوئی پیار نہیں دے سکتا. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں, آج کل تو اگر بیوی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں تیری میکے چلے جا, وہی علاج کرا لینا, اور پھر ادھر ادھر منہ ڈالتے پھرتے رہتے ہیں تسکین کے لیے. لیکن آپ کو بتاؤں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی تھی, اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان کا اتنا خیال رکھتے تھے. جب گھر میں بکری ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت خدیجہ جن جن سے محبت کرتی تھی ان کے گھروں میں جا کر پکے گا, بعد میں میرے گھر میں پکے گا. بعد وصال بیوی کا اتنا خیال رکھ. آج تو جیتے جی اگر بیوی کے بال جھڑ جائے, بیوی کو بیماری لگ جائے تو اس کو دشمن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کمینہ پن دل کے اندر عروج پا رہا ہے. پھر کہتا ہوں میں اپنی نجی محفلوں میں بھی لفظ کمینہ نہیں کہتا, مجھے حیا آتی ہے. لیکن اگر میں حدیث کو نہ پڑھ سکا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شرافت کس چڑیا کا نام ہے. میرے محبوب نے جس کو کمینہ کہا, پھر میں اس کو کمینہ کہنا یہ میرا مسلکی تقاضا بھی ہے, یہ میرا مشربی تقاضا بھی ہے, یہ میرا دینی اور اخلاقی تقاضا بھی ہے. خدا کی عزت کی قسم, حضور نے جو کیا ہے بس وہی اخلاق ہے, نہ اس سے زیادہ اخلاق ہے نہ اس سے کم اخلاق ہے. واہ 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 واہ. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. پھر فرمایا سلمان فارسی نے اس کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ایسا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اور بھی ہوگا. اے سلمان, سب سے زیادہ ذلیل باعمل مومنوں کو سمجھا جائے گا, ایمان والوں کو, مومنوں کو ذلیل سمجھا جائے گا, اور نیکی اور برائی کو بہت حقیر سمجھا جائے گا, اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا, اور امانت کرنے والوں کو امانت کرنے والوں کو خائن سمجھا جائے گا, خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا. سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے. جو سچ بولے گا اس کو کہیں گے یہ جھوٹا ہے, اور جو جھوٹ بولے گا اس کو کہیں گے یہ سچا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر میرے آقا علیہ السلام جب یہ بات کہہ چکے تو سلمان فارسی نے کہا میرے ماں باپ کو آپ پر قربان, حضور ایسا ہوگا, ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جو حاکم اور حکمراں ہوں گے وہ ظالم ہوں گے, ظالم حکمران ظالم ہوں گے, ظلم کریں گے رعایا پر. آپ دیکھ لو یمن سے لے کے شام تک, شام سے لے کے مصر تک
मिस्र से लेके हिंद तक, हिंद से लेके सिंध तक, कहीं भी देख लीजिए क़यामत की निशानियों में से निशानी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुक्मरान अफसर जो है वो जालिम होंगे, जाबिर होंगे, और अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों की हुकूमत होगी, औरतों की हुकूमत। आप नहीं देखते घरों के अंदर हुकूमत किसकी चल रही है आज? औरतों की हुकूमत होगी, और गुलामों से और कनीजों से मशवरे लिए जाएंगे, मशवरे गुलाम और कनीजों से लिए जाएंगे, और छोटी छोटी उम्र के लोग तकरीरें करेंगे मिंबरों पर, छोटे छोटी उम्र के लोग खुतबा और मुकर्रिर बनेंगे, छोटी उम्र के लोग खिताबात करेंगे। इकबाल इसको कहते हैं तब बरकी न रही, शोला मकाली न रही, तब बरकी न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, रह गई रस्मे अज़ा, रूहे बिलाली न रही, और वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। जब छोटे छोटे छोकरे तकरीर करेंगे तो फिर पुख्तगी कहां से आएगी? तो ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। और फिर ये भी फरमाया मुकर्रिर बढ़ जाएंगे, उलमा कम होंगे, इल्म वाले कम होंगे, मुकर्रिर लोग ज्यादा होंगे। ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है। इल्म वाले उठेंगे, खुतबा का दौर दौरा होगा। आप देखें यूट्यूब पर, ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आई है खुतबा की, और उसमें फिर कोई सहाबा को गाली दे रहा है, कोई अहले बैत को उनकी खताओं को गिना रहा है, कोई अंबियाए किराम की खताओं का, उनकी अजमतों का इनकार कर रहा है, कोई सहाबे किराम का हिसाब किताब लेने खुद ही बैठ गया है। क़यामत से पहले क़यामत है, और उनकी उम्रें तो देखो, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का। हालत ये है कि होंठ देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि जैसे इनके दूध के होंठ अभी खुश्क हुए हों। और ये बात किस पे कर रहे हैं? सहाबा की अजमत पर। बात किस पे कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, अहले बैत अतहार पर। अहले बैत अतहार की अजमत को रिवायात मौज़ूआ के जरिए से उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है। औलिया अल्लाह की करामतों को कहानी किससे कहे जा रहे हैं? क्या हो रहा है? और आप हैं अवाम, उनका हाल ये है जैसे ऑटो स्टेशन पर कोई बंदा चांदनी चौक जाने के लिए निकला, तो ऑटो वाले कैसे करते? स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर कहते चलो मेरी रिक्शा में बैठो, चलो मेरी रिक्शा में, चलो मेरी रिक्शा में। यहां तक कि कोई झोला भी छीन लेता है, चलो चलो मैं उठा के ले जाता हूँ। कहाँ जाना है? चांदनी चौक जाना है, महबूब इलाही जाना है, चलो मैं लेके। एक आदमी है, 50 रिक्शा वाले हैं, तो आदमी सोचता है जाओ भाई इतना तंग ना करो, मैं किसी की रिक्शा में बैठते ही। ये हालात है। तो ऐसे ही मुकर्रिरों की भरमार है। सुने किसको, किसको फॉलो करें? लच्छेदार तकरीर पर, किसी की भी तकरीर हो, अगर जज्बाती हो, लच्छेदार हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, चाहे हंसाने वाली हो, चाहे रुलाने वाली हो, चाहे अदबी जवाहिर पारों से मुज़य्यन हो, किसको सुन के फॉलो करें? जिसकी भी बात सुनो, महबूब इलाही, गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गौसे आजम, मखदूम सिमना, मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम अहले सुन्नत, इन बुजुर्गों के नजरियात के सामने उसको रखो। अगर इंसान बुजुर्गों की बोली की तरह बोली बोल रहा है तो उम्र न देखो, हसब न देखो, नसब न देखो, इलाका न देखो, खित्ता न देखो। जो तुम्हारे बुजुर्गों की बोली बयान कर रहा है उसकी बोली को मान लो। जो तुम्हारे बुजुर्गों की बोली को छोड़ चुका हो फिर उसकी खिताबत न देखो, उसकी लच्छेदार तकरीर न देखो, उसको रिजेक्ट कर दो। जो तुम्हारे बुजुर्गों के नजरियात को रिजेक्ट कर चुका है उसको जो है दफन कर दो, उसके नजरियात को दफन कर दो जो तुम्हारे बुजुर्गों के नजरियात के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसलिए कि हमें क़यामत के दिन किसी खतीब के साथ नहीं उठना, किसी अमीर के साथ नहीं उठना, किसी मुबल्लिग और दाई के साथ नहीं उठना। हमारी तमन्ना तो यह है कि क़यामत में उठे तो निजामुद्दीन औलिया के साथ उठे, इनके नाना जान के साथ उठे, और ये उसी वक्त होगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है
वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो फरमाया ये होगा। सलमान फारसी ने कहा हुजूर ऐसा होगा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ऐसा होगा? तो आका इस्लाम ने फरमाया सलमान, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आका इस्लाम फरमाते हैं कि लोगों का हाल ये होगा, ऐसे हालात होंगे जो हक बात कहेगा उसको कत्ल कर दिया जाए, हक बात कहने वालों को कत्ल किया जाएगा, गनीमत को अपना जाती माल समझा जाएगा, हाकिम लोग, वजीर लोग, अमीर लोग अपनी रियाया की औरतों से ज़ना करेंगे। हर फैसला हक और इंसाफ और दलीलों पर नहीं होगा, हर फैसला मुंह देखकर, चेहरे देखकर, दौलत देखकर, जुल्म जोर और सितम की वजह से होगा। यानी कि अदालतें कचहरियां बन जाएगी, यानी कातिल को क्लीन चिट दी जाएगी और मकतूल के वारिसों को जेलों में ठोसा जाएगा। दुनिया भर का मिजाज देख ले, हालात देख लें। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्कि ऐसा होगा, अब सुने यहाँ कितनी सख्त तरीन बात है, अपने बारे में भी ये मत सोचना कि लोगों के बारे में हो रही है, हम तो आजाद है। नहीं, आका फरमाते हैं इंसान का जिस्म इंसान की तरह होगा, नाक, आंख, मुंह, लब, ये हाथ, पैर, सर, इंसान का जिस्म इंसान की तरह होगा, लेकिन इंसान अंदर से शैतान बन चुका होगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, इंसान शैतान बन चुका होगा। टाइम पूरा हो गया है और अभी हदीस काफी बाकी है। मैं अपनी बात बड़ी नवाजिश, बड़ी इंसान तवज्जो, इंसान जिस्म के एतबार से इंसान होगा, लेकिन अंदर से वो शैतान बन चुका होगा। देखो सफेद कपड़े, कीमती कपड़े, सफारी सूट, खूबसूरत बाइक, ये वो सब कुछ है, लेकिन अंदर से शैतान है, चल रहा है तो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, इसका माल हड़प कर रहा है, उसका माल हड़प कर रहा है, लोगों को कत्ल के मंसूबे बना रहा है, छोटी छोटी रकम के एवज एक दूसरे की सुपारी ले रहा है, एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। बल्कि अब तो एक अजीब सी वबा चल पड़ी है। क्या वबा चल पड़ी है? पहले लोग किसी को कत्ल करते थे, जहर खिलाते थे, अब लोग क्या करते हैं, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता तो जादूगरों के पास जा करके लोगों को जादू के अंदर मुब्तला कर देते हैं, सहर कर देते हैं, बलाओं में गिरफ्तार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इंसान का जिस्म इंसान की तरह होगा, कुलूब उनके शैतानों की तरह हो जाएंगे। और फिर फरमाया, अब इस पर भी जरा देखो, वो बड़ों की ताजीम नहीं करेंगे, वो बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे। आपसे बात कहता हूं, बूढ़ा कोई भी हो, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद जिसकी दाढ़ी हो जाए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्लाम में जिसको बुढ़ापा आया उसकी ताजीम वही करेगा जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। और एक बात, एक हदीस सुन लो, बहुत खूबसूरत। फरमाया बूढ़ों की ताजीम करना अल्लाह की ताजीम करना है। कोई आम बूढ़ा तुम्हें मिल जाए, आम बूढ़ा जो जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आया, तो उसका एहतराम गोया के अल्लाह का एहतराम है। मतलब क्या? अल्लाह के एहतराम का मतलब, क्योंकि अल्लाह ने उसके एहतराम का हुक्म दिया है, तो अल्लाह का गोया के एहतराम है। वो आम बूढ़ा मिल जाए जिसको इस्लाम में बूढ़ा, तो जिससे कोई रिश्ता नहीं, उसका एहतराम इतनी अहमियत रखता है। तो अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनका एहतराम कितना अहमियत रखता है। वाह 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 वाह। जब किसी की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द करने में हया फरमाता है, और जब किसी की दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाती है तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, अब इसके गुनाह लिखना बंद कर दो। सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम किया कर, लेकिन सफेद दाढ़ी उसकी जिसकी उम्र की वजह से हुई, ना कि शैम्पू की वजह से सफेद हो गई। क्योंकि आजकल दाढ़ियां तो शैम्पू और साबुन और केमिकल की वजह से सफेद हो रही है जल्दी जल्दी। उम्र की बात कर रहा हूं, उम्र की, तो उनका एहतराम कर। सहाबा किराम का हाल ये था, अगर कोई बूढ़ा आगे चलता उसको ओवरटेक नहीं करते थे साहब। ये दौर था। और आज तो बूढ़ों का मजाक करते हैं। कई बूढ़े ऐसे होंगे जो खड़े होंगे और कई जवान ऐसे जो कुर्सियों में बैठे होंगे, वो देख के टस से मस नहीं होंगे।
इतनी अनानियत और शैतानत भरी हुई है, एहतराम बड़ों का गया, ताजीम गई बड़ों की, सब उठ गया, छोटों से शफकत उठ गई, बड़ों का एहतराम उठ गया। ये क़यामत की निशानी है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं छोटों पे रहम नहीं करेंगे। सलमान फारसी ने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या ऐसा होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ सलमान, अल्लाह की इज्जत की कसम, मस्जिदें ऐसी खूबसूरत संवारी जाएगी जैसे कनीसा गिरजा संवारे जाते हैं। जैसे गिरजा यानी यहूदियों के और ईसाइयों के इबादत खाने जैसे संवारे जाते हैं, वैसे मस्जिदों को संवारा जाएगा। हालांकि ये कोई गुनाह नहीं है। फिर मैंने पहले इब्तिदा में कह दिया कुछ क़यामत की निशानियां अच्छी है, कुछ क़यामत की निशानियां अच्छी है, कुछ क़यामत की निशानियां तबाहकुन है। तो जैसे हुजूर की आमद भी क़यामत की निशानी है, बोलो ये रहमत है कि नहीं? इमाम महदी की आमद भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, वो रहमत है कि नहीं है? तो कभी ये मत उसको रंग मत दीजिएगा। तो मस्जिदें संवारी जाएगी, सजाई जाएगी, कुरान आरास्ता किया जाएगा, कुरान को सोने के पानी से लिखा जाए, कुरान सजाया जाएगा, सजा सजा कर कुरान को जो वो छापा जाएगा, लिखा जाएगा। और फरमाया अल्लाह अकबर, बड़े ऊंचे मिंबर बनाए, मिंबर बड़े ऊंचे बनाए जाएंगे मस्जिदों में। और वालिदैन की हक तलफी की जाए, दोस्तों से प्यार करेंगे, माँ बाप से नफरत करें। क़यामत की निशानी, जब भी पार्टी में जाएंगे, 2 दोस्त 4 दोस्त 6 दोस्त, जहां चाय पिए सब जेब से पैसा निकालें, मैं दूंगा मैं दूंगा, ये बाहर। दोस्तों में बिल कौन देगा पार्टी का? मैं। चाय का बिल कौन देगा? मैं। आइसक्रीम का बिल कौन देगा? ताकि लोग बोले यार क्या हमारा दोस्त है। और घर में बाप बीमार पड़ा तो वो बाप बेटा कहेगा तू देना, तू बेटा नहीं है, तू बेटा नहीं है, तू देना, तू बेटा नहीं है, तू देना, तेरा बाप है, तेरी माँ है, तेरा बाप। कैसा दौर आया बचपने में, जब बच्चे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ मेरा बाप, और जब बड़े हो जाते हैं तो तेरी माँ तेरा बाप। ये क़यामत की निशानी। दोस्तों से प्यार करेंगे, माँ बाप से नफरत और अदावत करेंगे। फिर फरमाया अल्लाह अकबर, बद मजहबियत की कसरत होगी, बद मजहबी की कसरत होगी। लोग अलग अलग बातें करेंगे, यानी ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी, कुछ का कुछ उठाकर लाएंगे। ये हाल होगा। अब आप देखो, बाप दादाओं ने कभी नहीं सुना था कि जो मज़ारात के अंदर सो रहे वो मिट्टी का ढेर है, कभी नहीं सुना था, नहीं सुना। बल्कि जो मज़ारात में सो रहे उनको अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी जाना जाता था, लेकिन हो रही है, क़यामत की निशानी है। फिर सलमान फारसी कहते हैं हुजूर ऐसा होगा? मेरे आका फरमाते सलमान, अल्लाह की इज्जत की कसम, मशरिक और मगरिब से कुछ लोग आएंगे जो मेरी उम्मत पर हुकूमत करेंगे और वो कमजोर लोगों को दबाएंगे। सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? कहा अल्लाह की तरफ से हलाकत है उनके लिए। फिर कहा हुजूर ऐसा होगा? कहा अल्लाह की कसम सलमान, हाल ये होगा कि झूठ बोलना, लोग मजाक में भी झूठ बोलना सीख लेंगे, हालांकि झूठ बोलना मजाक में भी हराम है, झूठ बोलना मजाक में भी हराम है। आका फरमाते मजाक में झूठ बोला जाएगा। फरमाया ज़कात को तावान समझा जाएगा, ज़कात तावान समझी जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी, रिश्वत आम हो जाएगी। और फरमाया सूद का बाजार गर्म हो जाएगा और लोग एक दूसरे को असली कीमत से ज्यादा उधार दे करके धंधे चलाएंगे। ये तो आज आप देख लें, असली कीमत से ज्यादा उधार देकर धंधे चलाएंगे, रिश्वत आम हो जाएगी, सूद का बाजार गर्म हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह अकबर, ज़कात को तावान समझा जाएगा। फरमाया औरतें औरतों के साथ बदकारी करेगी। अब इसको जल्दी जल्दी बगैर तफसीरे के सुन ले। औरतें औरतों के साथ बदकारी करेगी, मर्द मर्दों के साथ गलत काम बदकारी करेंगे। याद रखना, ये नौजवान लड़के खास तौर पे सुन ले, आजकल दोस्ती, हुजूर ने फरमाया नौजवान लड़कों से दोस्तियां इसी बुनियाद पे की जाएगी, उनके हुस्न की बुनियाद पे, उनके जमाल की बुनियाद पे। जैसे औरतों पर गैरत की जाती है वैसे लड़कों पर गैरत की जाएगी, जैसे औरतों से मंगनियां की जाती है वैसे नौजवान छोकरों के साथ यानी मंगीतरों वाला सलूक किया जाएगा। लेकिन वो नौजवान कान खोल के सुन ले, मर्द का मर्द के साथ बदी करना ये ज़िना से भी बदतरीन अमल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मर्द
किसी मर्द के साथ बदकारी करता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है और करीब होता है कि आसमान टूट करके उन पर गिर जाए। फरिश्ते आसमान के किनारे पकड़कर कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत शुरू करते हैं और उनके कुल हु अल्लाह पढ़ने की बरकत से उनसे अजाब रुक जाता है। फरमाया गया जो मर्द के साथ बदी करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मर्द के साथ बदी करता है, जब वो मरेगा तो कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेगा और वो मर के कहीं भी दफन होगा तो कौम लूत पर जहां अजाब आया था वहीं ले जाकर के उसको डाल दिया जाएगा। कहीं भी मरेगा उसको वहीं ले जाकर के फेंका जाएगा। खुदा के लिए ये सब कयामत की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दिनों वक्त से बरकत चली जाएगी, वक्त से बरकत चली जाएगी, दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं मगरिब की तरफ से सूरज निकलेगा। ये सब क़यामत की निशानी में से निशानी है। लोग जमीन में धंस जाएंगे, अल्लाह अकबर, सुर्ख आंधियां चलेगी और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया फिर महदी का ज़हूर होगा। इस पे मैं अपनी बात को तमाम करता हूं। फिर महदी का ज़हूर होगा, वो मोहम्मद महदी होगा, उसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, उसके अब्बा का नाम मेरे बाबा के नाम पे अब्दुल्ला होगा, उसकी अम्मी का नाम मेरी अम्मी के नाम पे आमिना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वो जो है वो दरमियानी कद वाला होगा, उसका गंदुमी चमकदार रंग होगा, उसके दाएं रुखसार पे तिल होगा। अल्लाह अकबर। वो 40 साल की उम्र में लोगों को आशूरा की शब में बयात करेगा। यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, लोगों को कयामत की इतनी जल्दी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हर दिन खबर आती है कि मेहदी आने वाले हैं, बस 2 साल में आने वाले हैं, बस 10 साल में आने वाले हैं, 50 साल में आने वाले हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं इमाम महदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा बिल्कुल जब कयामत करीब आ चुकी रहेगी, यानी महदी आए फिर कयामत आई, बस इतना। यानी कि ये समझ ले इमाम महदी के बाद दुनिया निस्फ सदी तक भी नहीं रहेगी और फिर इमाम महदी के बाद जो है कयामत आ जाएगी। और ये इमाम महदी कब आएंगे? जब इस्लाम सिमट कर ऐसे हिजाज की तरफ जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल की तरफ आता है। लोगों को अभी कहां महदी इमाम महदी जब आएंगे वल्लाह वो आएंगे, वो अजमत वाले हैं। इसीलिए कभी हैदराबाद से कोई कहता है मैं महदी हूं, कोई औरंगाबाद से कहता है मैं महदी हूं, कोई लाहौर से कहता है मैं महदी हूं। मैं कहता हूं पठानों के यहां थोड़ी महदी आएंगे, चंगेजों के यहां थोड़ी महदी आएंगे, किसी ऐरे गहरे के यहां थोड़ी महदी आएंगे, किसी और बिरादरी में थोड़ी महदी आएंगे। हुजूर ने कह दिया जो महदी आएगा वो फातिमा बिनते मोहम्मद की औलाद में से होगा, वो इमाम हसन का बेटा होगा। फरमाया अल्लाह की कसम अगर एक दिन भी कयामत को बाकी रह जाए तो मेहदी आ करके रहेगा, महदी के आए बगैर कयामत नहीं आएगी। यहां पहुंचकर मेरा दिल कहता है लोगों तुम रसूलुल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना करना चाहते हो, तुम नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम अली की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम इमाम हसन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम इमाम हुसैन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तुम गौसे पाक और गरीब नवाज की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हो। नबी का बेटा एक महदी ऐसा बेटा है कि पूरी उम्मत को यकीन है जब तक महदी नहीं आएंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। नबी के एक बेटे ने कयामत को रोक रखा है। जब एक बेटे की शान का याद, जब एक बेटे की नबी के एक बेटे ने कयामत को रोक रखा है, जब एक बेटे की ये शान का आलम है तो हजरत तकी की शान का आलम क्या होगा, हजरत नकी की शान का आलम क्या होगा, हजरत हसन अस्करी की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या होगा। तो इमाम महदी के रुखसार पे दाएं रुखसार पे तिल होगा। ये बात भी बता दी गई। इमाम महदी कब आएंगे इसको हतमी तौर पे कोई सन नहीं बताया गया। कुछ लोग यूट्यूब पे आके भी कहते हैं वो पैदा हो चुके फला शहर में, यहाँ है वहाँ है वहाँ है। लेकिन याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, इब्ने हजर ने यही लिखा, अल्लामा सुयूती ने लिखा और हमारे अक्सर बुजुर्गों ने लिखा, साहिब सवाइकुल मुहर्रिका इब्ने हजर ने यही लिखा। वालिद का नाम अब्दुल्ला, अम्मी का नाम आमिना और हजरते उनको महदी कहा जाएगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी जुल्फें होगी। बल्कि यहाँ तक फरमाया उनकी जबान में हल्का सा भारीपन होगा उनकी, और वो नॉर्मल आदमी की तरह
تقریباً کم و بیش 30-40 سال کی زندگی گزاریں گے، ایک ہی رات میں، صرف ایک ہی رات میں ان کے حالات بدل جائیں گے. ایک رات میں سارے علوم اللہ ان کے سینے میں انڈیل دیں گا. ایک ہی رات میں، ایک ہی رات میں سارے علوم ان کے سینے میں انڈیل دیے جائیں گے، اور پھر زمانے میں انقلاب آئے گا. مزید جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب ہے، بڑی باتیں ہیں جو کچھ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے، کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم. السلام علیکم.